टॉपिक में पिक करूंगा. सो अंडर द हेल्थ एंड वेल-बीइंग सेक्टर विल बी फोकसिंग ऑन 3 कोर एरियाज. पहले प्रिवेंटिव हेल्थ, देन क्यूरेटिव एंड देन वेल-बीइंग. प्रिवेंटिव का मतलब होता है हमें बीमारी होने से रोकनी है. क्यूरेटिव का मतलब होता है that if somebody is ill, we have to provide them with treatment. And well-being means overall well-being of any person. Overall well-being is not limited to physical health, but also to mental health and other related aspects of it. To achieve these 3 pillars, we are having Atmanirbhar Swasth Bharat Abhiyan, which will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. In this, we'll be developing primary, secondary, and tertiary healthcare systems, and our existing national institutions will be strengthened. We will also try to develop new technology, infrastructure, new institutions, so that we can detect as well as cure new and emerging diseases. ठीक है, एक होलिस्टिक प्लान है सो दैट इन फ्यूचर वी शुड बी मोर केपेबल. यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, यानी कि ऐसी हेल्थ लैब्स जहाँ पे हर टाइप के टेस्ट हो सकते हैं आपके. It will be created in all districts and 3,382 blocks. ठीक है, इनमें डेवलप होगी ये 11 स्टेट्स के अंदर. अब धीरे धीरे इसको हम लोग फिर एक्सटेंड करेंगे पूरे कंट्री के अंदर. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस स्वस्थ भारत अभियान, स्वस्थ भारत योजना. Also, it will create centers called as National Institution for One Health. Now, this is very important because in India, when pandemic erupted, there was not even a single body that could be able to monitor as well as track as well as issue guidelines. I mean, तुमने देखा था ना, MHA और ICMR दोनों के बीच में फुटबॉल चल रहा था कि कभी ये किक करते थे एक लॉ को और एक गाइडलाइन को, कभी ये करते थे. ठीक है, MOHFW अलग ही पिच पे खेल रहा था अपनी. इनका तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये खेल भी रहे हैं या नहीं. ठीक है, सो MHA, MOHFW, ICMR सब चले जा रहे हैं लगातार. ऑल दीज आर कंटिन्यूइंग. उसके बाद में अगर ये वन हेल्थ का एक नेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो जाता है, तो व्हाट विल हैपन दैट इन केस ऑफ एनी डिजीज और एनी आउटब्रेक, MHA कैन कोलैबोरेट डायरेक्टली विद दिस वन हेल्थ. या फिर ऐसे हो जाएगा कि MHA कैन कोलैबोरेट विद MOHFW एंड MOHFW कैन कोलैबोरेट विद वन हेल्थ. सीधे सीधे सारा डेटा इनके पास आता रहेगा. एंड इसको अगर ऑटोनोमस बना दिया तो आई थिंक द डेटा रिलीज्ड बाय देम विल आल्सो नॉट बी क्वेश्चनड. इस बार क्या हुआ था, व्हेन द डेटा वर रिलीज्ड ईदर रिलेटेड टू नंबर ऑफ डेथ्स or related to number of active cases, it was questioned at every level. That I think could be dealt with. Next point is a regional research platform for WHO Southeast Asia region. 9 biosafety level 3 laboratories and 4 regional national institutes for virology. ये भी create करे जाएंगे. अब तुम्हें पता है WHO के बहुत सारे regional offices होते हैं, but एक उसका regional research platform create किया जाएगा. ठीक है, that will also be established. So WHO again becomes important this year because India has shown keen interest in reviving WHO. Apart from that, India is the chair of WHO's executive body इस time पे. ठीक है, 1 जनवरी से हम लोग chairperson बने इसके. So we are at the chair of the WHO and now we are taking steps forward like creating one regional research platform, which is indeed very good. Now, did you realize that how it is important for us to become a chairperson of these bodies? Because then we can take steps which are in our own favor. अगला पॉइंट है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SNP, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान. ठीक है, इनको मर्ज करके मिशन पोषण 2.0 रिलीज किया जाएगा. इन दिस यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, दैट SNP वाज अ प्रोग्राम व्हिच वाज targeting the nutritional status of women and children, and ministry is implementing supplementary nutritional program under Anganwadi services and scheme for adolescent girls under the umbrella ICDS. ICDS क्या है? Integrated Child Development Services. Now, this scheme covers children from 6 months to 6 years, pregnant women, lactating mothers, and out of school adolescent girls between 11 to 14 years. SNP ये program था. Basically, it supplemented extra nutrition to them. Then there is Poshan Abhiyan. Poshan Abhiyan is not only limited to children, it is also targeting mothers. इसके बाद यहाँ पे नीचे एक बहुत बड़ा detailed box दिया हुआ है. What is it about? There is something called as report on progress. ये कौन क्रिएट करता है पोषण अभियान के कंटेक्स्ट में? नीति आयोग. और ये रिपोर्ट 3rd वर्जन जो आया था 2020 अक्टूबर में, अक्टूबर 2020 में रिपोर्ट आई थी. इसकी समरी है ये पूरी. ठीक है, दिस समरी यू हैव टू गो थ्रू ऑन योर ओन, दैट व्हाट इज इट. आई विल टेल यू. उस समरी के अंदर ये डॉक्यूमेंट अराउंड, इफ यू गो थ्रू एंड टेक अ लुक एट इट, इट इज अराउंड लेट्स से 400 पेजेस समथिंग.
तुमको पूरे 400 पन्ने नहीं पढ़ने, उसमें से बस इतना तुम्हारे काम का है, ठीक है। यूपीएससी देने जा रहे हो, डॉक्टर बनने नहीं जा रहे हो, वो भी न्यूट्रिशनिस्ट खास तौर पर, तो कोई जरूरत नहीं है तुमको पढ़ने की पूरा। टेक अ लुक एट दैट। I'll explain you a few key terms. For example, what is stunting? Can somebody tell me? Yes, sir. Stunting is low height for age. ठीक है. And what is wasting? Sir, low weight for height. Correct. ठीक है. ये हो गया हाइट पर एज, इन्वेस्टिंग है ठीक है, वेट फॉर हाइट। ये दोनों टर्म याद रखना। अनीमिया बता सकता है कोई? व्हाट इज अनीमिया? Iron deficiency, sir, in blood. Iron deficiency. What does this lead to? Goiter. नहीं, sorry. गलत। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में, लो एचबी Right. लेवल। What would this do in turn? Sorry, sir. What would this do if anemia is there? What is the job of blood in our body? Blood oxygen level. Supply of oxygen. Correct. हीमोग्लोबिन कैरीज, एचबी कैरीज और O2, ठीक है। अगर एचबी की कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो O2 की कमी हो जाएगी, विच मीन्स फॉर इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हमारी सांस फूलने लगेगी, ठीक है। स्लाइटेस्ट फिजिकल एक्टिविटी विल बिकम ट्रबलसम फॉर अस। तो जो सुनते हो ना, तो खून की कमी हो गई लोगों में, अनीमिया हो गया, दैट्स नॉट खून की कमी। खून तो पानी से भी बन जाता है, एक्चुअली इट इज हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोला गया है एक चीज को। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब क्या होता है? सपोज यू वांट टू रिमूव कंप्लीटली एनी काइंड ऑफ लकूना इन न्यूट्रिशन लेवल ऑफ चिल्ड्रन, हाउ डू यू डू इट? कैसे करोगे उसे आप कम? सबसे पहली चीज, वो बच्चा जितनी बार आपके सामने आएगा आप उसको कुछ ना कुछ खाने को दे दोगे, ठीक है। सो व्हाट दे आर सेइंग दैट ऑन एवरी पॉसिबल कॉन्टैक्ट विद families with children under 2 years of age, we should provide some sort of feeding to the child. मतलब जितनी बार अब आप अपना बच्चा लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा लो बेटा चॉकलेट लो, लेकिन चॉकलेट के नाम पे वो आपको खिलाएगा न्यूट्रिशन बार, सो दैट आपके बच्चे को एक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मिल जाए वहां पे। आई होप दिस पॉइंट इज मेकिंग सेंस टू यू। Yes, sir. Yes, sir. Why are we trying to do this at every possible contact? Maybe such children are lacking nutrition. Obviously that is why we are providing, वरना सरकार थोड़े ना कोई लैपटॉप बांट रही है बच्चों को, वो तो वोट भी नहीं देते। Because it is very difficult to keep track, ठीक है। कीपिंग ट्रैक ऑफ चिल्ड्रन इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमने बोला हमें ट्रैक ही नहीं करना, जितनी बार मिलेंगे बच्चे उतनी बार हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। All right. Next point is Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in 4,378 urban local bodies with 2.86 crore household tap connections. Simple सी बात है, facts हैं कि क्या क्या होने वाला है आने वाले टाइम में. You don't have to go through that in detail. Then there is Urban Swachh Bharat Mission 2.0. Now, can somebody tell me what was the target of Swachh Bharat Mission, SBM? Real targets. अगर स्वच्छता बोला किसी ने तो मैं पहले बता रहा हूँ, मीटिंग से एग्जिट करा दूंगा। स्वच्छता कैसे वाली चाहिए वो बताना। अबीत? सर ओपन डेफिकेशन फ्री। करेक्ट नवनीत, वेरी गुड। सो इसका पहला टारगेट था ओडीएफ इंडिया। ओडीएफ इज ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच कोई नहीं करेगा, लोटा उठा के कोई नहीं जाएगा सुबह सुबह, ठीक है। तो इसके अंदर ओडीएफ स्टेटस दिया गया था ना। ओडीएफ के बाद में व्हाट वी डिड वाज वी क्रिएटेड सैनिटरी लेट्रिन्स, मतलब कि टॉयलेट्स वी क्रिएटेड। उसके बाद में दूसरे नंबर पे व्हाट वी डिड वाज वी क्रिएटेड एसबीएम 2.0। इसके अंदर क्या किया हमने? हाउ डिड वी चेंज अ टारगेट नाउ? एनी क्लूज, एनीबॉडी?
ठीक है, रिटेंशन ऑफ ओडीएफ स्टेटस, सबसे इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स थे। रिटेंशन ऑफ ओडीएफ स्टेटस पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट था गेटिंग ओडीएफ प्लस एंड ओडीएफ प्लस प्लस, ये दो स्टेटस देने की कोशिश करी गई। एंड तीसरे नंबर पे वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एक अर्बन, अब इसका वर्जन आया है प्रॉपर, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.2। क्लियरली उसके अंदर यही दिखाया गया, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज से निकलने वाला वेस्ट जो है वो, सिंगल यूज प्लास्टिक, एयर पोल्यूशन का रिडक्शन, फीकल स्लज मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दिस विल बी अ पार्ट ऑफ दिस अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। So, ये जो की पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ कि एसबीएम में क्या था, एसबीएम 2.0 में क्या था, these are very important, remember them because you can use them in essays and everything, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स। एक बहुत अच्छी पहले पॉलिसी दिल्ली सरकार बना रही थी, आई डोंट नो व्हाई डिड इट नॉट क्रिएट इट, बट इट वाज अ वेरी गुड पॉलिसी। द पॉलिसी सेड, लेट्स से यू हैव अ व्हीकल व्हिच इज ओल्डर देन 15 इयर्स, ठीक है, एंड इट इज इलीगली पार्क्ड। दो कंडीशन मेट होनी चाहिए थी, इलीगली पार्क्ड, तो गवर्नमेंट विल टो इट एंड देन बिफोर यू इवन नो इट आप चालान छुड़वाने पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस स्टेशन में आप पुलिस वाले से कहोगे सर हाउ मच इज द फाइन फॉर माई कार, पुलिस वाला कहेगा योर फाइन इज नथिंग, यू गेट 1500 रुपीज फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज वी ब्रोक योर कार्ड, वी सोल्ड इट इन स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैपिंग हो गई उस कार की, आपका लोल हो गया सुबह सुबह। दैट इज हाउ स्क्रैपिंग पॉलिसी वर्कड। पता नहीं क्यों नहीं बनाई, आई थिंक द रीजन इज वेरी एबंडेंटली क्लियर, दिल्ली में पार्किंग स्पेस तो है नहीं, सारी गाड़ियां इलीगली पार्क्ड हैं, कुछ बचेगा नहीं फिर उसके बाद में, ठीक है। सो दिस वाज द ओल्ड पॉलिसी व्हिच वाज अबाउट टू बी क्रिएटेड, बट नाउ वी आर क्रिएटिंग इट ऑन अ पैन इंडिया लेवल, which means to phase out the old and unfit vehicles. We'll be conducting automated fitness tests after 20 years and 15 years in case of commercial vehicles. Personal गाड़ी है तो 20 साल बाद, वरना अगर commercial आपकी तो 15 साल बाद एक fitness test करा जाएगा। If it is old and unfit, we will be kicking it out. As simple as that. अगला पॉइंट है बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग इज 2,23,846 crores, which is a significant rise of 137% over the 94,452 crores of the past year. Now understand, still we have not come out of COVID, so this is not a regular allocation, it is allocation in emergency tenure. So if this continues tomorrow, after the pandemic is over, then it will be a reform. Until then it is just okayish thing. It's not a major reform, it's not a mega reform, ठीक है। कंपैरेटिवली मैंने डेटा दिया हुआ है यहाँ पे कि बाकी कंट्रीज कितना स्पेंड करते हैं हेल्थ के ऊपर। अगला वर्जन है यहाँ पे फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के अंदर पीएलआई के बारे में बात करिए। पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट सेज लेट्स से यू आर मैन्युफैक्चरिंग 1000 मोबाइल फोन्स राइट नाउ, इफ यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग 2000 we'll give you 2% tax relaxation. Why? Because in order to produce 1000 more, you would have to hire more people, you would have to make, तो मतलब more jobs है यहाँ पे, more investment is required. अगर 2000 बना रहे हो तो जाहिर सी बात है you will also export, which means more forex. All these things are the benefits of more manufacturing, and government has been trying to get manufacturing to improve significantly, which is why we have such PLIs, performance linked incentive, sorry, production linked incentive schemes. Okay, it got stuck again. All right, इसको पढ़ लेना अपने आप अच्छे से, वही सब लिखा हुआ जो भी मैंने बताया। Then there will be a मित्र scheme which is about mega investment textile parks. So investment textile parks जो हैं, they will make textile industry globally competitive, attract large investment and boost employment generation and exports. Textile sector की खास बात क्या है? It has significant women employment. ठीक है, महिलाओं को बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है टेक्सटाइल सेक्टर में। Also, this was the area which has been significantly hampered since demonetization. Demonetization के बाद GST के बाद में COVID, all these things have had a significant negative impact on textile sector. So repeatedly इसकी हालत खराब हो चुकी थी, which is why we are creating that. Then there is something called as National Infrastructure Pipeline. Now National Infrastructure Pipeline का मतलब क्या होता है? It's not working. Let me do something else. Very nice. Got stuck. वाह, ये दूसरे पेज पे भी आ रहा है। चलो ऐसे ही पढ़ा देता हूँ।
Now, national infrastructure pipeline का क्या है? National infrastructure pipeline is a plethora or a bouquet of projects. ये सारे projects जो create करे जा रहे हैं, they are being created in order to ensure that इंडिया में जो infrastructure bottlenecks है, they can be dealt with. तो इसमें we are trying to boost many structures, many sectors, including energy sector, road sector, transportation, housing, agriculture, railways. Every other sector is being targeted. So around 1.2 lakh crore rupees का investment हम 102 lakh crore rupees का investment हम पहले करने वाले थे. Now we have increased that further and we have also included more sectors into it. ठीक है. 102 lakh crores जो target था, that was until 2024-25. In this, we will try to develop various projects. सबका साथ सबका विकास वाली बात है. सरकार अपने हिसाब से काम करेगी so that social infrastructure इंडिया का improve हो, डेवलपर्स को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के पैसे मिलेंगे, लोगों के लिए बेटर सर्विसेज अवेलेबिलिटी होंगी, सारे सेक्टर्स के लिए कॉमर्शियली इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बॉटलनेक्स हैं, दे विल बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली. ठीक है. बट ऐसा करने के लिए हमें चाहिए है रुपया, बहुत सारा रुपया. सो हाउ वुड वी गेट दैट मनी? सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज. फर्स्ट, यू कैन क्रिएट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सो विच आर एबल टू गेट मनी फ्रॉम अदर एरियाज एंड मार्केट से उठा सके पैसा. सेकेंडली, यू कैन मोनेटाइज द एसेट्स व्हिच वी ऑलरेडी हैव. एंड थिर्डली, बाय एनहांसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेंट्रल एंड स्टेट बजट. सरकार ने इस पर तीनों चीजें करी. सबसे पहले वी हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज अ DFI. DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. इंडिया का सबसे पहला DFI कौन सा था? इट वाज इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFC, launched in 1948. Thereafter, many other banks are there, many other such institutions are there. For example, IDBI, UTI, NABARD, EXIM, SIDBI, NHB, IFSCL, etc. Some of these later on also graduated to become a bank. Full-fledged bank भी बन गए बाद में. जैसे UTI आज की तारीख में एक्सिस बैंक है, if you know that. ठीक है. Apart from that, IDBI is also a bank now. ICICI Bank भी इन्हीं से निकला है. So all these were institutions once, development finance institutions. Now they have become banks. So ऐसे DFIs बनाए जाएंगे. Around 20,000 crores will be provided for this, but there is one catch to it. Unlike the past, this time these DFIs will not be managed by the government. They will be professionally managed DFIs. यानी कि we will be giving it out to the corporates so that they can manage such DFIs. तो ये specific institutions हो गए. अब दूसरा तरीका हमने क्या देखा था पैसा कमाने का? We'll try to monetize all our assets. So एक सिंपल सी बात है, एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी क्रिएट करी जाएगी, in which we'll see that which of our things can be monetized, which infrastructure can be monetized, and what can be done with that. For example, you know that ISRO had huge space capabilities. Now, if you wanted to deal with those space capabilities, how could you do it? We created Antriksh Corporation, we created New Space India Limited, NSIL, etc. ठीक है. तो ये एक मोनेटाइजेशन कर दिया हमने हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स का. So this is how we will keep moving forward and we'll try to monetize more such assets. Third thing is by increasing our capital expenditure. अब दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के. One is revenue, second is capital. Revenue expenditure is for day to day, which leads to expense of the capital on our ongoing activities. For example, salaries, for example, PF लोगों को देना, interest payment करना सरकार के द्वारा. Basically any money that is gone without any returns. ठीक है. Although you will say sir productivity लोगों की आ रही है, but that is not a return to the government. ठीक है. वो उसकी liability है. But capital expenditure leads to creation of assets. For example, सरकार ने अगर एक पुल बनाया, तो tomorrow it can earn revenue from it. ठीक है. या तो ट्रेड बूस्ट करेगा वो पुल, या फिर टैक्स कलेक्शन बढ़ाएगा, या टोल का पेमेंट आएगा, कुछ भी होगा, बट गवर्नमेंट विल बी अर्निंग. सो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. So revenue expenditure is the one which does not lead to any kind of asset creation. Capital expenditure वो है जिससे कोई भी asset create होगा. सरकार अपने इस बजट के अंदर पूरी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड है. ठीक है. सो whatever was the previous plan, उसके हिसाब से सरकार ने अराउंड 34.5% मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है कंपेयर टू द बजट एस्टिमेट्स ऑफ 2020-21. पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में अभी 34.5% more expenditure has been done. Apart from that, 2 lakh crores will be provided to autonomous bodies and state governments so that they can also do their own capital expenditure. Then there is a railway, a national rail plan for India. It will be creating a future ready railway system for India by 2030. इसके लिए बहुत सारे हम लोगों ने डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाए. DFC के बारे में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अ कपल ऑफ टाइम्स, तो अभी एक बार फिर से एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है. You can see that this is the project. It is expected to look like this once the entire debate is done, once the entire
DFC corridor is created and implemented on the ground. You'll see that एक section यहाँ लुधियाना से start हो रहा है, दानकुनी तक जा रहा है, दूसरा section यहाँ दादरी से start हो रहा है, and thereafter it's coming to JNPT, ठीक है, देन भुसावल से लेके खड़गपुर तक आ रहा है, यहाँ पे इसका एक लिंक बनेगा खड़गपुर टू दानकुनी, एंड एक बनेगा ये हिजू से लेके अंडल तक. अपार्ट फ्रॉम दैट विजयवाड़ा से लेके खड़गपुर तक एक आ रहा है यहाँ पे. देन देयर इज अ सदर्न DFC, देयर इज मच मोर व्हिच इज स्टिल इन पाइपलाइन, ठीक है, दोस हैव नॉट येट बीन अप्रूव्ड. व्हाट्स बीन अप्रूव्ड इज आल्सो प्रोवाइडेड ओवर हियर, ठीक है. सबसे पहले एक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा वाला, और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है भुसावल टू खड़गपुर टू दानकुनी, एंड देन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम इटारसी टू विजयवाड़ा. ये सारे आपके अप्रूव हो चुके हैं, बाकी अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं. देन देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, एक मेट्रो लाइट, एक मेट्रो नियो. मेट्रो लाइट जो होती है इट्स अ लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम, रेल सरफेस की तरह चलेगी एट ग्रेड. इसके लिए रोड विड्थ जो है वो रिक्वायर्ड है 8.5 मीटर की. अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी और दूसरे रोड पे ये लोग इसको लिए जाएंगे. ना मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो में कितना भी समझा लूं तुम्हें समझ नहीं आएगा. द बेस्ट वे टू फाइंड दिस, जस्ट टेक अ लुक एट द गूगल पिक्चर्स, गूगल इमेजेस में जाना, मेट्रो लाइट सर्च करना और फिर मेट्रो नियो सर्च करना, ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है. इनफैक्ट जो मेट्रो नियो है, दिस लुक्स मोर लाइक अ बस सिस्टम, बट इट इज ऑपरेटेड इन द मैनर ऑफ रेल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से ऑपरेट किया जाता है. देन इसमें एक टर्म यूज किया गया है दैट दीज विल बी यूज्ड इन टियर 2 सिटीज एंड टियर 1 सिटीज के पेरिफेरल एरियाज में. टियर 1 सिटीज के मेन एरियाज के अंदर हम लोग मेट्रो डेवलप कर रहे हैं, बट मेट्रो इज वेरी कॉस्टली टेक्नोलॉजी एंड इट कैन नॉट बी डेवलप्ड दैट इजीली, ठीक है. तो इसी वजह से वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इट इन टियर 1 सिटीज के पेरिफेरल में और टियर 2 सिटीज में. अब सिटीज को डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग? वी डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है. 3 डिफरेंट टाइप्स हम लोग के यहाँ होते हैं ब्रॉडली सिटीज के, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3. मोस्ट डेवलप्ड सिटीज आर इन टियर 1, उसके बाद वाली टियर 2, फाइनली लीस्ट डेवलप्ड वाली टियर 3 के अंदर आती हैं. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. फॉर एग्जांपल तुम्हारे एरिया में तुमने देखा होगा टाटा पावर सप्लाई करता है, अडानी करता है, या फिर कोई और करता होगा, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम करता है, या कोई भी हो. But there would be a power distribution company in an area which will be the only provider of electricity. अब उनकी सर्विस कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी खराब हो, you have to stick with them. Government is saying that this will change very soon. Multiple companies will be allowed to sell electricity in the same area. Just need to go to that company and tell their tell their officials that you want it. Your connection will be shifted to the other company. That's it. Same infrastructure, just another company jumping into it. This will kill any kind of monopoly which is currently existing. अगला है, प्रधानमंत्री जी ने जब री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस में 2020 में बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन विल बी देयर. अब 2021-22 के बजट में हाइड्रो एनर्जी मिशन को लॉन्च भी किया जाएगा एंड हाइड्रोजन को ग्रीन पावर सोर्सेस से जनरेट करने के लिए सरकार पूरे एफर्ट्स करेगी. अगला पॉइंट मेजर पोर्ट्स के बारे में था, दैट मेजर पोर्ट्स विल नाउ बी मॉनिटर्ड बाय ऑपरेशनलाइज्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, कि अभी उनकी ओनरशिप सरकारी रहेगी पर उन्हें ऑपरेट जो है प्राइवेट कंपनीज करेंगी. सो ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है. कांडला से लेके हल्दिया तक सारे पोर्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड आल्सो नो दैट व्हिच पोर्ट्स आर आर्टिफिशियल, व्हिच पोर्ट्स आर नेचुरल, ठीक है. देन देयर इज आल्सो अ टर्म कॉल्ड एज फ्लैगिंग ऑफ शिप्स. What is a flag of convenience? That is for you to understand. Suppose करो तुम्हारी एक गाड़ी है उत्तर प्रदेश की. अब उत्तर प्रदेश की गाड़ी को देख के सबको पता है कि यूपी वाले लोग बड़े शरीफ होते हैं, इनसे कुछ भी बोलो तो कुछ खराब नहीं होता. तो गाड़ी पे अगर लिखा है लेट्स से यूपी 91 या यूपी 28 या कुछ भी इस टाइप का नंबर लिखा हुआ है, दैट इज यूपी का फ्लैग उस पे लगा हुआ है, दैट्स यूपी's फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस. पुलिस देखेगी, बोलेगी बहुत अच्छी बात है, बहुत शरीफ लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड लेट्स से देयर इज अनदर कार विच इज कमिंग, उस पर पड़ा दिल्ली का नंबर. पता है दिल्ली का नंबर है तो इसके अंदर एक लड़का होगा जो अपने पापा के बारे में सबको बताता घूम रहा होगा, तो पुलिस वाले उसे उस हिसाब से डील करेंगे, ठीक है. दिल ट्राई टू चेक हिम, दिल ट्राई टू काउंटर हिम. फिर लेट्स से इफ देयर इज समबडी जिसकी गाड़ी के ऊपर नंबर पड़ा हुआ है कसौल का, अब पुलिस वाला गाड़ी रोक के खड़ी कर लेगा, कहेगा तू पहले चेक करा, तेरी तो गद्दियां फाड़ के देखेंगे हम. द फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, एज सिंपल एज दैट. कसौल का जो नंबर होगा बेसिकली. सो यू अंडरस्टैंड ना, अपने हिसाब से देख लेते हैं कि कहाँ से गाड़ी आ रही, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कैसी है. Thereafter they know what they have certain kind of prejudices in their brain. Same goes with flag of convenience. अब क्या है, इंडिया के लेट्स से 50 कंट्रीज के साथ में शिपिंग टाइज हैं. सो दैट मींस इफ इंडिया passes through their waters they will not have any problem with that Indian ships. तो मैक्सिमम शिप्स विल कम टू इंडिया अगर इंडिया के ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ ऐसे टाई अप्स हैं. But if India does not have such tie ups with other countries, in that case what will happen, Indian ships भी बाहर कहीं कोई रजिस्टर कराएगा.
ठीक है, वो वहां रजिस्टर कराएगा जहां मैक्सिमम ऐसे टाई अप्स मिले, सो दैट उनको मूवमेंट फ्री हो। बताया ना मैंने, गाड़ी का नंबर यूपी वाला होना चाहिए, वही चीज। सो that is the process of flagging. You put your flag onto a ship. Now government will try to promote merchant ships in India so that maximum flagging in हो सके इंडिया में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शिप्स इंडिया की इसमें क्या बोलते हैं रिपोजिटरी में आ सके। फायदा क्या होगा? मैक्सिमम ट्रेड विल बी डिपेंडेंट ऑन अस, सेकंड आवर ट्रेड विल बूस्ट, थर्ड वी विल बिकम अ मेजर ट्रेड हब फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। इसे करने के जब ये होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा शिप्स अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वील हैव टू स्क्रैप देम आल्सो, ठीक है। अब स्क्रैप करना है तो इंडिया ऑलरेडी हांगकांग कन्वेंशन का पार्ट है। हांगकांग कन्वेंशन क्या नीचे दिया हुआ है, बट एक सिंपल सी बात है, हांगकांग कन्वेंशन के अंदर देयर इज अ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ एनी हजार्डस मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स। जो शिप्स का क्या बोलते हैं स्क्रैपिंग का काम होता है गुजरात में बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो गुजरात के कोस्ट्स आर जनरली मार्ड विद दीज हजार्डस सब्सटेंसेस, ठीक है, बहुत उनकी हालत खराब रहती है। नाउ गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट, जिसके अंदर सही तरीके से उनको रिमूव करना, सही तरीके से उन्हें डिस्पोज करना वगैरह सब दिया हुआ है, पूरा नीचे दिया हुआ है, आराम से पढ़ लेना है यहाँ पे। देन सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, ये सब बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी हो गई थी एक्ट्स की। सरकार बोली इसको सबको मिक्स कर देंगे, एक सिंगल कोड बना देंगे, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिनटेक हब एट गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ठीक है, फिनटेक सेंटर बेसिकली, फिनटेक सेंटर, तो गिफ्ट सिटी बोलते हैं उसे। उसके अंदर एक आईएफएससी है। अब आईएफएससी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज वगैरह में आप ट्रेड कर सकते हो, एंड ये एक तरीके से तुम्हारे लिए इंटरनेशनल वाटर्स है, ठीक है। इफ यू आर इन दी आईएफएससी, इट इज जस्ट लाइक एज इफ यू आर नॉट इवन इन इंडिया, यू कैन इजिली कंडक्ट ट्रेड ग्लोबली, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर्स की तरह ट्रीट करते हैं, आप कहीं भी ट्रेड करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बहुत ईजी रहती है वहां पे। सो गिफ्ट आईएफएससी के ऊपर अब सरकार एक वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब और बनाएगा, सो दैट मल्टीपल कंपनीज फ्रॉम वर्ल्ड वाइड कैन कम एंड दे कैन क्रिएट देयर ऑफिसेज हियर। बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट टू पीपल फ्रॉम इंडिया, एम्प्लॉयमेंट टू पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। एंड इफ वी हैव सिटीज जस्ट लाइक सिंगापुर, हांगकांग एंड लंडन, ये सारे न्यूयॉर्क, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज दीज आर ट्रेडिंग हब्स। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर ट्रेडिंग हब एट गिफ्ट आईएफएससी इन गुजरात, ठीक है। देयर विल बी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन चार्टर, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। एसईसीआई में यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन में भी हम पैसे लगाएंगे, वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तारीफ है, काबिल है, सॉरी काबिल तारीफ है। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस एक्ट 1938 को हम अमेंड करेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज में हम 49% से बढ़ा के अब 74% एफडीआई करने वाले हैं, ठीक है। दिस मींस वी आर अलाउइंग ओनरशिप टू बी ट्रांसफर्ड टू फॉरेन एंटिटीज नाउ, व्हिच इज अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड, ऑल्दो इट विल बी डन विद सेफगार्ड्स, बट देन इट इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। अगला है, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, पढ़ लेना। अगला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड फर्दर ओपीसी वगैरह, ये हम करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अब तुम लोग भी 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हो, बूढ़े होने लगते हो पढ़ते पढ़ते। तो अब कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। एनी डाउट्स इफ यू माइट हैव? कोई डाउट नहीं? No. हाँ ललित। Sir, I'm from Agra, and recently our Prime Minister had decided to construct a metro rail in Agra. I don't know what is the purpose of constructing metro in Agra, which is already a congested city, and there is a lot of scarcity of water. So I don't get this point. Why we are constructing metro in Agra? Okay. So let me tell you, this is for multiple reasons. First reason, you have stated for yourself that Agra is pretty congested. If it is congested not because the area is very small, but because in the area, limited area, there is a huge number of vehicles. If metro is created and if metro is affordable, in that case, vehicles plying on the road can be brought down. Second thing, the thing which you say about the water quality in Agra is very true. It's because of the industries that existed in the past in Agra region. Although ताजमहल के पीला पड़ने के बाद में उन्हें वहां से शिफ्ट आउट कर दिया गया था, but still water table is pretty low, and whatever is the quality of water is also excessively poor. Now government has to do something about it as well, but as of now what we are facing, जो अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे, that is only a way to remove the congestion from the roads. उसका मेट्रो का